Hello guys, welcome to my channel. So in this video I am going to revise chapter number 1 of the subject company law of executive module 1 of the company secretaries course, and I am basically a fresh law graduate and a company secretary student. If you are a student जिन्होंने already chapter number 1 complete कर लिया है, so this video is also for you. And if you are a student जिसने अभी तक start नहीं किया है, उनके लिए भी है, बिकॉज लाइक एक शॉर्ट जिस्ट आप लोग को मिल जाएगा कि या क्या है एक्चुअली चैप्टर्स में. सो कंपनी, द वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, okay, from the Latin word which is called the cum and penis, which means with or together, PANIS. Penis means bread, okay, together having the bread kind of thing. Anyways, तो उसको ही company, like company is derived from that word. Done with this, then okay, so what is basically company? उसका definition है in section 2 subsection 20 of the Companies Act 2013 में उसको describe किया है. What is a company? Company means a company incorporated under this act or any previous company law. General term में इसको समझना चाहिए what is company. तो उसका मतलब ऐसा है कि company is an association of both artificial and natural person. Like company में, like for example this is the company, and इसमें both natural person and artificial person in the sense company itself is an artificial person. Yeah, so company, natural person and artificial person जहाँ पे दोनों एक साथ काम करते हैं, incorporated under the existing law. मतलब जब भी जैसे like companies act 2013 is the existing company law, so उसके अंडर जो companies आते हैं तो उनको हम लोग company बोलते हैं. So हो गया. अभी इसके बाद आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. Okay. Applicability of Companies Act 2013. Okay, so applicability मतलब कहाँ, मतलब कौन सा कंपनीज में ये कंपनी लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा. हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कि इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा अप्लाई. हाउ कैन वी लाइक पता कैसे चले हम लोग को. ओके, सो एप्लीकेबिलिटी में फर्स्ट होगा ऑब्वियसली कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, लाइक दिस कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ. ये तो होगा ऑब्वियसली फर्स्ट कंपनी अंडर दिस एक्ट, incorporated under this act or previous company law or previous company law. Number B है insurance companies. Okay, so in this case, the thing is that if there is a clash between this, the provisions of these two act and the provision of company law, so in that case, this act will prevail over the provisions of company law. ओके, सीधी भाषा में अगर दी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का जो प्रोविजंस है, जो एनी रूल्स एंड ऑल जो है इस एक्ट के अंदर, अगर वो क्लैश करता है, आर यू गेटिंग इट? क्लैश मतलब अगर वो इनकंसिस्टेंट होता है विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ जो भी है, तो उन उस केस में दिस विल प्रिवेल, ओके, एंड नॉट द कंपनी लॉ. Okay, not the company law. Only in case of insurance companies और बाकी companies, but companies act में उसमें सिर्फ company law ही मतलब main priority रखता है. In so far as the said provisions are inconsistent with the provision, मतलब जहाँ तक inconsistent नहीं होता है उसके साथ, जहाँ तक clashes नहीं आता है, वहाँ तक ही companies act is will be applicable with the insurance companies. बाकी this insurance act 1938 और IRDA act 1999 will prevail over it. ओके, सो उसके बाद नंबर सी में भी आपका सेम ही है, भी आपका सेम है, एक्सेप्ट like banking companies except in so far as the said provisions are inconsistent with the provisions of. सीधी भाषा में मैं समझा देती हूँ क्योंकि ऐसा पढ़ने में लगता है कि बहुत कुछ है, बट ऐसा नहीं है. मतलब जहां तक क्लैश नहीं होता है with the other acts like banking companies is ruled by the Banking Regulation Act 1949. Banking Regulation Act 1949. Okay, so in case की company law and Banking Regulation Act के मिडिल में कुछ कन्फ्लिक्ट हो, इन सच केसेस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विल प्रिवेल ओवर द कंपनीज एक्ट. बस इस सिनेरियो के अलावा बाकी सारे चीजों में कंपनीज एक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन बैंकिंग कंपनीज. ठीक है, सो अभी नंबर डी है कंपनी engaged in the generation or supply of electricity. Okay, जो कंपनीज engaged है जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, सो उन कंपनीज
के ऊपर भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो वाला कंडीशन इट विल अप्लाई। मैं फिर से समझा देती हूँ। इन केस अगर कंपनीज एक्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंडर में लाइक क्लैशेस होता है प्रोविजंस में, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट विल प्रिवेल। इसके मुताबिक हम लोग को चलना पड़ेगा, नॉट द कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट हम लोग का है अदर कंपनीज गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। पर इसमें भी वो वाला कंडीशन है कि एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेट प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ सच स्पेशल एक्ट। मतलब स्पेशल एक्ट का प्रोविजन अगर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है विद द कंपनीज एक्ट, तो स्पेशल एक्ट विल ऑलवेज प्रिवेल। ओके, बी एफ में हम लोग आते हैं। इट्स रिवीजन है, आई एम गोइंग फास्ट थोड़ा सा, शायद मैं स्लो ही जा रही हूँ, आई डोंट नो, बट एनीवेज आई विल गो फास्ट। ओके, सो नेक्स्ट है बॉडी कॉर्पोरेट। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेरीज। एंड ओके, सो बॉडी कॉर्पोरेट जो है इनकॉर्पोरेट बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बिंग इनफोर्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आज ही शायद दूंगी, आई डोंट नो, बट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस।